Hi Shivani, welcome to your 30s. Thank you, Shruti. I'm very excited to be in my 30s. Well, it is an exciting decade, I'll tell you. Yeah. So tell me something. What does 30 feel like? Lavender. 30s feel like lavender. Yes. So honestly, nice, no? Very nice. So honestly, I was kind of, you know, like when I was exiting my 20s, I felt like, oh my God, now I have to be a big girl. And I don't know, like 30s is a big number. Whenever you're in your 20s, you're like, 26, 27, 28, 29 तक भी ठीक है. But 30 में आते ही मतलब कुछ तो हो गया बॉस. क्या हो गया बॉस? कुछ तो हो गया, बड़ी हो गई अब मैं. तो लेकिन ऐसा क्यों है? Why 30 as a number? It gives you that thing in your head कि oh my god, shit, 30s. I think honestly it's something like, as kids we used to think that okay, ऐसे लगता था कि हाँ 24-25 तक नौकरी पक्की, 26-27 तक शादी, 30 तक तो एक बच्चा भी हो जाएगा. बट अब जब तुम 30 में हो तो चलो नौकरी काम शाम तो है, बट ना शादी है ना बच्चा है और तुम अभी भी मौज काट रहे हो. तो ये तो अच्छी बात नहीं है, फिर इसमें डरने वाली क्या बात है? अरे कहीं सोसाइटी कहे कि नहीं अब तो मौज नहीं काट सकते फिर. भाई सोसाइटी सोसाइटी हाँ. सोसाइटी का ही अगर सोचते रह गए तो फिर तो कैसे होगा? So, okay, let me ask you. ठीक है. Now that you're almost exiting your 30s, what is that one thing that you would tell me, like an advice or something not to worry about, or anything as a person who's exiting to a person who's entering? Okay, so my advice या experience या जो भी whatever you want to call it, 30s is the best time so far. Maybe एक बारी मैं 40s में जाऊंगी तो I might say that 40s is the best time so far. But yes, 30s is the time when you are very stable. 30s is the time when most of your things are pretty much sorted. ठीक है, जिनकी शादियां हो गई हैं, they are stable in their life or sort of working on that milestone. But 30 is the stabilizer. That's what I believe. So live your life. Absolutely love every bit of it. That's it. Thank you. हाँ. Absolutely love every bit of it. और बहुत सारी ना टेंशन आपकी खत्म हो जाती हैं यार. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 20s में ना आप यू आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड योर सेल्फ. करेक्ट. 30s तक ना आपको ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मिल चुके होते हैं. बहुत सारी फेल्ड रिलेशनशिप्स, जॉब्स, कम पैसे होना, यार यहाँ जाना है पैसे नहीं है, वहां जाना है पैसे नहीं है, बजटेड ट्रैवल. तो लेकिन 30s में आते आते ना काफी चीजें वो सेट हो चुकी होती हैं. फिर आप बोलते हैं भाई अब आई जस्ट वांट टू चिल, आई जस्ट वांट टू लिव माय लाइफ. सो दैट इज व्हाट आई वुड से. And if I ask you that, like, would you, at any circumstance, if you get a chance, would you go back to your 20s or let's say teenage? नो. No. नॉट एट ऑल. ठीक है, वो सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे, बहुत मजे करे हैं. पर वो सब कुछ ना आपका एज अप्रोप्रिएट होता है. मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, कई लोग बाद में जाके भी वो चीजें करते हैं. बट आई थिंक आई हैव दिस फीलिंग कि इन योर टीन एज ईयर्स देयर आर थिंग्स दैट यू वांट टू डू. लाइक जो भी है, आप फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हो, कॉलेज आपका इनिशियली शुरू होता है, आप क्लबिंग करना शुरू करते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं. यू ट्राई डिफरेंट ड्रिंक्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. But if you'll ask me right now, if I want to go back and live all of that again, my answer would be a plain no. That I am absolutely at peace where I am right now. And नहीं, मुझे वो दोबारा से नहीं जीना. Not because of ऐसा था वैसा था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. सब कुछ बहुत अच्छा था. जो experiences थे, they were meant to happen. And all good. All right. So okay, अभी जैसे you said कि 30 तक ये हो जाता है, वो हो जाता है. तो what are some of the expectations versus reality वाला things that have happened now that you are 30-year-old? Like since the time I turned 30? It's been 2 weeks. Yes. But see, you have completed your 30th year. We have had that discussion पहले भी. So ideally, it's been like almost 1 year. जब you have already entered your 30th year. You have completed your 30th year 2 weeks back. But हाँ. Okay, for one, हाँ. as you said that I already entered my 31 year ago. Right. My lower back problem. हाँ. So much pain in the lower back, dude. Like why?
Why? No injury, nothing happened. And everybody on Instagram or like real friends or whatever, they talk about this lower back issue, dude. And I think this is also sort of a reality check that, bro, your body will, not to be a sad Nancy or what Nancy is that? Uh, but yeah, like, It is a thing. खींच लो बेसिकली जितना भी समय समय अच्छी शरीर के साथ है खींच लो. अच्छा, तो फिर मैं माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू वुड बी कि फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो यू वुड टेल पीपल कि भाई ये 30 से पहले पहले डू दीज थिंग्स, क्योंकि 30 के बाद चीजें डगमगाने लगती हैं. Honestly, like if you are a traveler and if you are sort of a backpacker, adventurous person who likes to trek, all of those things, I would say do it in your early 20s. Like before 26, 25 is the ideal age that you can climb up. Honestly, I will get hate for it. It's not true fully because I see people in their 40s also climbing mountains or whatever. बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें अगर तुम खींच लोगे यंग एज में, उसके बाद चीजें वो रह गया, टीस उठ गई, ये हो गया, वो हो गया, वो टीस उठ गई. So मेरे हिसाब से all the adventure stuff, do it early. You can also do it later, but just to be safe, like now with my lower back and my broken shoulder, broken knee, whatever, I can't do all of those things. So yeah, that is one thing that I would advise. हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा यहाँ पे देती हूँ. दैट फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उसका नाम नहीं ले रही अभी क्योंकि मैंने उससे परमिशन नहीं ली है कि क्या मैं उसका नाम ले सकती हूँ. तो उसको था कि भाई स्काई डाइविंग करनी है, स्कूबा डाइविंग करनी है, और वो रिसेंटली गई और वहां जाके पता चला कि भाई उसके हेल्थ इश्यूज, नोज ईयर वगैरह के इतने ज्यादा हैं कि वो अब ये कर ही नहीं सकती. तो उसने मुझे ये चीज बोली कि भाई सैम, नहीं हो सकता. कहती मतलब आई रियली रिग्रेट कि मैंने क्यों नहीं किया, बट कहती है इट इज व्हाट इट इज, कहती है मैं नहीं कर सकती. तो हाँ, ये रियलिटी है, बट आई वुड स्टिल से कि ठीक है ये सारी चीजें करो, बट उसके बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू स्टॉप पुशिंग योरसेल्फ. गॉड आई एम 30 नाउ, आई कांट डू इट. नहीं, पुश योरसेल्फ. Exactly. कि पुश करते रहो, बट हाँ कोशिश करो से पहले पहले. Like I remember that dialogue from The Office when what Creed he नाम था ना उसका. When Creed gets to know about his scuba, like maybe he can't do scuba and he's like, उसका एक बहुत तगड़ा dialogue था उसमें, वो कहते हैं if I can't do scuba, what has this all been about? Like I was building my entire life to eventually do scuba and I can't do it. Like why? Right. हाँ, तो अपने ड्रीम्स को इतना आगे तक मत लेके जाओ. हाँ, दैट इज ट्रू. ट्रू. ठीक है. तो श्रुति, ऐसी कौन सी मिथ्स हैं अडल्ट लाइफ की विच हैव टर्न्ड आउट टू बी लाइज? भाई जो सबसे बड़ी मिथ है ना, जो मुझे लगता है, सो आई एम 38, हैप्पीली सिंगल, बढ़िया लाइफ चल रही है. ये होता है ना भाई, शादी कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा. भाई शेयर लाई. मतलब मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये कि ऐसा कुछ भी नहीं होता. एंड इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू क्रिएट योर लाइफ, दैट्स इट. कि ये सारी चीजों में फंस के ना, ऐसा होता है 30 से पहले शादी कर लो, पापा के रिटायरमेंट से शादी कर लो, पापा के रिटायरमेंट से शादी कर लो, पापा के रिटायरमेंट से पहले शादी कर लो. इन सब चीजों में मत हो. हाँ, इफ यू फाइंड द राइट पर्सन, डेफिनेटली डू इट. बट ये वाली उस फियर में आके मत करो कि शिट यार मैं 30s में जाने वाली हूँ और मेरी शादी नहीं हुई है और मेरा क्या होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है यार. क्रिएट अ लाइफ फॉर योर ओन सेल्फ. बाकी सब कुछ, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस. सो दैट इज वन मिथ दैट आई वुड से you'd like to break. Yes. अच्छा शिवानी, टेल मी, हाउ डिफरेंटली डू यू सी योरसेल्फ नाउ versus 10 years ago when you were what? 20. हाँ, turning 20. Turning 20. हाँ, now you have turned 30, तो हाँ, 10 years ago turning 20. Honestly, back then there was no future planning, there were no stresses, there was nothing of that sort, no sadness, no injuries. No sadness, no injuries, no heartbreak. I would say that was a very free
yet very what do you call it, अनजान, कोई कोई अता पता ही नहीं है जीवन का जी, हाँ, कि भैया चल रहा है। चल रहा है जी, क्या हो रहा है जी, कोई 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 लोड ही नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कुछ सोचा ही नहीं शायद कि मौज कटे जा रही है जी, दोस्तों के साथ चिलिंग चल रही है। तो आई थिंक not having to worry about anything at all was different. अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज पूछूंगी यार, कि जैसे लोग कहते हैं कि अरे लिव इन द प्रेजेंट, फ्यूचर में मत जियो, तो फिर 20s में भी तो यू आर डूइंग दैट ओनली, तो व्हाई वुड इट चेंज नाउ? मतलब व्हाई शुड यू चेंज, और हैज इट ऑलरेडी चेंज्ड, एंड इफ यस देन हाउ? सो मेनी क्वेश्चंस, बट वेल, Of course it has changed, Shruti. Now I have to worry about the future. like what? Like financial planning. If I have to, so like earlier I used to just 10,000 रुपए पकड़े, पहाड़ों पे गए, मरते मराते सड़े वैसे कमरे में वही घिसवा रहे हैं, चल रहा है जी। अब बॉडी भी नहीं चाहती, मन भी नहीं चाहता, रूह भी नहीं चाहती, कुछ भी नहीं चाहता इतना अपने आप को सताना। हाँ, तो 10,000 की जगह अब तुम 50,000 का ट्रैवल कर रहे हो, 1 लाख का ट्रैवल कर रहे हो, उसके हिसाब से प्लानिंग, अच्छा अगर ये कर रहे हैं तो फिर ये स्किल जो सोची थी करनी वो तो नहीं कर रहे। मैं I don't want to be, why do I feel like I'm just like complaining, am I? नहीं, you are just giving the reality check. No, you're not complaining. It's just a very honest conversation. Yeah, right? हाँ हाँ, हम्म, खुश तो है ना तू? अब मैं बहुत खुश हूँ बॉस। बस इंडिया यही है, हाँ जी ये खुश होना जरूरी है। आप बताइए क्या? ओके श्रुति, सो आई हैव अ क्वेश्चन, what is that thing that you value now but you never really cared about earlier? अच्छा, what I value now that I never valued earlier. I think people who are a constant part of your life. जैसे पहले I was a butterfly, like इतने सारे लोग, सबकी बातें, ये वो दुनिया भर की वार्तालापें चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, वो मेरी जिंदगी में, मैं उनकी जिंदगी में। बट अब ऐसा है यार कि अब गिने चुने जो लोग हैं उनको मैं बहुत वैल्यू करती हूँ। तो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में, यू लर्न टू वैल्यू देम, कि कौन है, कौन नहीं होना चाहिए, कौन होना चाहिए, और इक्वल रेसिप्रोकेशन वाली जो चीज जो हम डिस्कस करते रहते हैं, कि जस्ट डोंट कीप गिविंग, राइट? तो हाँ, मुझे आंसर मिल गया इसका। इसका आंसर है, व्हाट डू आई वैल्यू मोस्ट? इट इज माई ओन टाइम, इट इज माई ओन एनर्जी। आई थिंक, हाँ, ये सब इधर से घुमा फिरा के होता है ना, ऐसे कान पकड़ के, ऐसे कान पकड़ के। तो आई थिंक दैट इज माई आंसर, दैट आई एब्सोल्युटली वैल्यू माई टाइम एंड एनर्जी नाउ, एंड आई थिंक एवरीबडी रियली शुड, कि आप किस में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, किसको अपनी एनर्जी दे रहे हो। राइट, बिकॉज इवन दैट इज लिमिटेड, राइट? ओ यस, बाय द एंड ऑफ द डे कितनी बार ऐसा होता है यार, काम करके हम ऐसे इतने मरे हुए होते हैं, बर्नआउट हो चुका होता है, और उस टाइम पे आपको कोई नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमें एक दूसरे से भी स्पेस चाहिए होती है उस टाइम, कि भाई तू अपने कमरे पे जा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ट्रू। सो आई थिंक दैट इज माय आंसर। Okay, so I think this was a interesting discussion. Nice discussion, Shruti. वेरी नाइस डिस्कशन। See you in the next episode. See you, bye bye.